Joint DG Anita ma'am, Shri Udaya sir, Coach Director ma'am, Srimati Divya Parmar ma'am, ACD ma'am, Dr. Mahavi presents for the AK Sinha Memorial 1 Act play. And now before we proceed with this evening, going on motto of MCHRD, Tamsaman Jyoti Gamal, I would request all DG sir, Divya ma'am, Madhu ma'am to light the lamp and raise the occasion. Ma'am, please tell ma'am, I request you to join. A very good evening to respected dignitaries and my dear friends. Last month, the House General Society released the first newsletter. Your scandals are here. Participating with their act, each team will get approx 20 minutes to present their act, and there will be 4 awards for the best director, best play, best script, and best actor or actress. Good evening everyone. Meet Mr. Kalandar Haji, richest man of Taranga village. We welcome you all to the grand wedding reception party organized by Sri Kalandar Haji in connection with his grandson's marriage. Here we start the drama, Biryani. Hussain, our celebration should be a grand function. This entire village should remember this day and our arrangements for a long time to come. Don't worry, sir. This entire village will definitely remember this wedding even after your death. Hussain, don't kill me with your words. I'm just 86. Live and kicking. Sir, don't forget that you are a man with 4 wives. That I remember. You don't have to remember. Sir, coming to the wedding, the light has been arranged, the music person is on his way, the cameraman is also almost here. But food, what are the arrangements for food, sir? Hussain, this is Kalandar Haji's grandson wedding.
we'll treat this entire village with biryani. Biryani? Wow, sir. Yes, Hussain, not just normal biryani. We are going to treat them with special puri mandi biryani. Wow, sir. Wow. Hussain, between us, let me tell you a secret. Just yesterday, a truck full load of basmati arrived from Punjab. Wow. Basmati, you know? Basmati, that good? No. You funny guy. Not basmati who? Basmati rice. Okay. I couldn't believe it initially, but suddenly, this room was filled with the fragrance of blooming jasmine. What are you? Jasmine. No, that is basmati rice. It's a new stuff. Okay, sir. As you say, I think around 2,000 people will be coming. No. This is Haji's function. Entire village will come. Make arrangements for 4,000. Okay, sir. I'll do this. Hussain, Yes, sir. there should not be any complaints, nor there should be any lack in it. Yes, sir. Okay? Yes, sir. Hussain, Yes, sir. just now I remember that chef from Abu Dhabi, he called me and asked for a labor for the backyard. Okay, sir. You call Ramachandra and tell him that I personally will be coming. Okay, sir. I'm calling. Call immediately. Take those chairs, put it here. Hello? Hello, Ramchandra. Hussain, tell. Do you remember the grand function here? Of course, bro, everyone knows about that. Yeah. So I need your help. I need one person to work in the backyard. Can you find a boy for me? One person, huh? Just hold on, huh? One person, it's difficult, but for you I'll manage. Yes, yeah, please. But you know what? Yeah, I need my commission. don't worry. Our staff will take care of it. Yeah, bus is coming. Come to my shop in 15 minutes, okay? We'll Okay, manage. I'm coming. Okay. Don't spit here, okay? You also leave. Yo, take a stool and go. Keep it here. Go sit there. Clear it down. What is this? You come for work, right? Do one thing. You three, come. See that lady there? Go and tell her that you have come for work. I told everything. Just go and meet her, okay? What are you waiting for? Who is this? It is very miserable. Okay. Why are you waiting? Go! Well, come here. Okay. Take it. Malayalam are you? Sir, Malayalam Manasilavadu, sir. Okay. ID card you have, no? Sir, I don't have an ID card. No ID card? No ID card. I can do any work, sir. I can do any work. Sure? Sure, sir. Okay, we'll do one thing. We'll manage the work. But whatever I say, you have to do it. Sir, I will do that. Okay. Haji is coming. Perfect work for you. Okay, are you ready? Obedient. Okay. Haji, come. How are you? Oh, this one. Okay. Sit, no. Fine, Haji. How is everyone at home? Everything is fine, Haji. Or? I told you what? Ah. You found someone? Of course, it's Kalandan Haji's marriage, no? Not Kaldaraj's marriage. Then? It is his grandson's marriage. Oh. Our boss is not able to manage his 4 wives only. Come here. Sorry. Anyway, I found this perfect guy. This is Gopal. Okay. He has been for 2 years now. 2 years. 2 years? Come here. Okay, you'll work now for him. Okay, but you have to give him 400 rupees. Sir. 400 is too much, reduce it. 300 is fine. Sorry. Gopal, man, talk everything. Go with them, okay? Then give him 200 rupees. It's okay, you are looking for work, right? Go, come, go, meet him. Sir, namaskar, sir. Well, Sir, can I get 100 rupees extra? He couldn't send anything to my home. Hey, it is not a very difficult job and all. Just 3 to 4 hours of work. What? Hussain, don't scold him. I'll tell him.
Gopal, it's just 3 to 4 hours work. Either you come or we'll find some work. What are you? Yeah, go ahead. What is this? Last chance. Okay, go. Okay. Go. Get in the car. Hussain, get the car. Where are you from? Sir, Lal Madhya, sir. Bihar. Bihar, sir. Okay. What are you doing there? Sir, I was in a coal company. Coal company. Sir, coal company, sir, coal field. When the company leaves the place, we used to collect the low quality coal and we used to sell it in the far village. 20 kilometers, sometimes 40 kilometers, you have to take the coal in cycle, sir. What, Gopal? 40 kilometers. Sir, Ya Allah. How much they will give for it? 10 rupees, sir. Just 10 rupees. Sir, actually 150 rupees, sir. But after paying to this police gunda, changing cycle tubes, ball bearings, it will be hardly 10 rupees, sir. Hey Gopal, you are getting just 10 rupees and telling me and asking me for 100 rupees extra. Huh? Such a greedy person, you are. Making fool of everyone. Huh? When did you leave here? 15 years back, sir. Before we share our pain with someone else, it is better to know whether that person too has had similar sufferings, at least in a small measure. Or else, we should learn the art of suffering about our struggles in silence. Hey Hussain, your break means you will put any time, huh? Indeed, sir. Come Gopal. Hussain, take Gopal to the backyard. Samir will be there. He will give the instructions of what to do. You take care of other arrangements, okay? Should be perfect. Gopal, go with Hey, it. Vada, Gopal. Basmati rice. Basmati. You know, when the first time I saw basmati rice, it was my wife, Madangi. She showed basmati rice in Suku's grocery store. She was carrying my baby then. She knew that basmati is not meant for people like us. But still, I begged Suku to get a handful of basmati for my Madangi. What are you doing there? Your work is not there. Come, bro. Your work is here. Sir. Come here. What is bro? Your work is very simple, okay? You have to dig a pit here. Dig a pit. Sir, pit, sir. Yeah, pit. Sir. Sir, height कितना है, sir? Height. तुम्हारा कितना? Sir. Yeah, this height. This depth. Sir, width कितना है, sir? You look. It should perfectly fit you. You got it?
You got what I said? It should perfectly fit you, and the height will be, depth will be your height. Got it now? Make it fast. Hey, Aishu! You're coming now. Oh, nice. Sir, can I get water? This guy is really please. You come. You come now. We'll meet there, okay? Qalandar Haji's grandson's wedding, Mr. Ahmad's wedding. Let's start the music. Well done. Oh, you have made a nice pitch. Listen, now it's even more simple, okay? The people will bring something, you have to just put it in, you have to just fill it with the soil, okay? You get what I say now? Hey man, bring it man. Yeah, Gopal, put this in the pitch. Sir? This is biryani waste. What happened? Sir, this is not biryani waste, sir. This is biryani waste, man. This is basmati, sir. What basmati, man? Whole village had come, they had Santa's food. They had thrown away some food. So that's became biryani waste. Now you just put it now, otherwise dogs will come and create a mess, man. You are making me crazy. Sir, this is not waste, sir. And This is waste. basmati, Bring that sir. one. Yeah. Bring that one also. Gopal, after this, you have to put this. Okay? Sir, it is not even open, sir. What? You have to open it, Gopal. Who will open it for you? You have to open it, I'll show you. You have to open it, you have to put it in the pit, you have to put some soil and stamp it like this. You got that? You should do it. Make it good. We don't have time, man. We are already running out of time. It's already 11 o'clock. Sir! Hey, arrange Sir! arrangements and say yes, man. Sir, this Make is it not good. waste, sir. Make it good. Sir! Make it good. Sir! Gopal, you? Well done. Let's take a selfie, man. Come on. Come on. Look into the camera. Hey, what happened to you? Why are you crying? Why are you crying? What happened? Sir, I just thought about my daughter. Oh, you had a daughter? That's nice. What's her name? Sir, her name is Basmati. Whoa, Basmati. Nice name. So you got reminded of your daughter after seeing this marriage, ah? That means your daughter is definitely married? No, sir. Then which college she is studying? We have time, man. Don't worry. No, sir. She's not studying. Where is she? Sir, she is no more. She is dead. She died of hunger. We couldn't feed her.
Mr. Haji, Venkatesh Prabhu, and Hussain, Abhishek, and Samir, Harisa, Malangi, Divya, and Ramachandran, Vishnu, everyone. And it was a wonderful work working with everyone. And we have the Arun was working in the audio. He was the person behind all the music and arrangements. Arvind and his team was behind the lights and arrangements. So I thank everyone, and from the team Biryani, thank you everyone. प्यारा था, लेकिन एक दिन वह डूब गया। यदि डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो, टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता। जो बीत गई सो बात गई। दोपहर में बहुत ही नरम वस्तु को खरीदा था। हम सब ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिला ही नहीं। और कल से महाराज ईश्वर अपनी बहन श्रुति की शादी को लेके बहुत परेशान है महाराज, बहुत परेशान है। अरे ये सब छोड़े, आज उसने मानसी को खाने पे बुलाया है। बड़ा सच सवर रहा था वो मानसी से मिलने के लिए। मतलब समस्या गंभीर है। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी व्यायाम करते हुए चित, एक महिला अधिकारी की बाल्टी हुई चोरी, पुलिस सुस्त, महिला मेस के खाने की निंदा करना पड़ा भारी। मेस सेक्रेटरी ने बोला, लेट्स सेटल इट आउटसाइड। सबीना और फोड़ू ललित के बीच हुई बाताबाती, फोड़ू ललित पे पड़ा भारी। और आज के आखिरी समाचार, इलेक्शंस में हुई गद्दारी, झाजी पे पड़ा भारी। अरे लगता है मानसी आ गई, हम तो तैयार भी नहीं हुए अभी। अरे वाह, तुम्हारा कमरा का तो नक्शा बदला हुआ है। साला गजब साफ सुथरा लग रहा है। तुम तकिया तो यूज नहीं करते थे, नया खरीदो का बे? अरे हाँ, कल वो मारवाड़ी सस्ते में दे रहा था तो एक ले आए। साला मुर्गा बुलाए हो का? बेटा अकेले के लिए भोज होता है, बुलाने का नहीं होता है तुमको। अरे दरअसल मानसी को खाने पे बुलाए। तो ऐसा बोलो ना। अरे क्या हुआ, तुमने प्रेम कहानी का कोई प्रोग्रेस हुआ कि नहीं? अरे कहाँ, वहीं अटकी पड़ी है, ना आगे बढ़ रही है ना आगे बढ़ेगी। अब बढ़ेगा भी कैसे? अब देखो गांव वाला तो हाल रहा नहीं कि साले एक साथ बैठ कर सब पिट्टू खेल रहे हैं। अब वो जॉब करती है बीपीओ में और तुम हो वेटर, कहाँ से कुछ बढ़ेगा? कहाँ डाले हो बे? चावल का तो गजबे सुगंध आ रहा है। बासमती बोलते हैं उसको। अरे तो सब उसी के लिए है कि हमको भी कुछ मिलेगा। मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा? बैठिए, तो काम करो, तुरंत खाना लगाओ। आज हम थोड़ा थक गए, जल्दी निकलेंगे और सोना है जल्दी। बड़ा एक्सकर्शन हो गया आज दिन भर। और सुनो एक और बात, ज्यादा मत लगाना, बस 6 पीस चिकन दे देना, 5-6 कलछुल बासमती, और 2-4 प्याज, अब मिर्ची, और क्या होता है लहसुन, और वो जितना मूली और धनिया सब है, जो है सब दे देना रे। अच्छा खाएंगे थोड़ा जम के। इतना कम खाएंगे? ढोलक बचता है क्या? देखे? अरे वाह, बहुत बढ़िया। लाओ खाना लाओ।
अरे ढोलक से याद आया कि वो म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने गए थे ना, क्या हुआ उसका? अरे कहाँ बात बना, लेकिन एक नाटक कंपनी है शायद वहाँ मिल जाए नौकरी, देखिए। अच्छा, और श्रुति का क्या हुआ? उसका शादी का बात चल रहा था ना, क्या हुआ उसका? हाँ, माँ से बात हो रहा था। बोल रहे थे आजकल कंप्यूटर पे भी ऐड किया जाता है। अरे आपको तो मालूम होगा ना, थोड़ा चलिएगा ना हमारे साथ साइबर कैफे। हमको तो यार ये कंप्यूटर समझ ही नहीं आता है कुछ। साला पता तुम्हारा ना साला यही प्रॉब्लम है। मतलब अगला वाला जब तक सामने वाले के पास जाएगा नहीं, तब तक सामने वाला अगला वाला का मदद कैसे करेगा? नहीं पड़े होगा, गॉड हेल्प दोज हु हैव देमसेल्फ। अब कहाँ चल दिए फोन लगाने किसी को? अरे मानसी को लगा रहे हैं, आई नहीं अभी तक, बड़ा देर हो गया है। ट्रैफिक में फंसी होगी। बम्बई का ट्रैफिक है ना साले, पता है 1 किलोमीटर जाने में 15 से 20 मिनट लगता है बम्बई में। देश का तो साला सत्यानाश हो गया है। मतलब सिस्टम नाम का कोई चीज ही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर साला आदमी कुत्ता के जैसे रेलवे पर बैठा रहता है। टोटल रेवोल्यूशन चाहिए साला, टोटल रेवोल्यूशन चाहिए। हेलो, हाँ मानसी, कब से तुम्ही को लगा रहे थे, कहाँ रह गई? अच्छा, नहीं ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम आराम करो, कोई बात नहीं। अरे क्या हुआ? कट गया? अरे तबीयत खराब है, बोल रही है आ नहीं पाएगी। देखो बेटा, हम तुमको बता रहे हैं, तुम ना उसका हाथ छोड़ दो। अरे नहीं, मतलब हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो बहाना बना रही है। बाकी तुम बेटे को खुले समझदार हो। अब कह रहे हैं कि देखो जब मानसी आ नहीं रही है तो काम करो, थोड़ा सा और चिकन और चावल लेके आओ, पेट भर के खाना खा के जाएंगे। जब जल्दी से लेके आओ। चलो। हाँ, सब आप ही के लिए है। हाँ, लीजिए खाइए, पकड़िए। लाओ तो। अच्छा, इससे याद आया, हम का रेवोल्यूशन का बात कर रहे थे ना। साला पता है जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी ना, साला गजबे का छात्र आंदोलन हुआ था। मतलब जेपी का एक आवाज पे साला सारा छात्र रास्ता पर, साला जेपी उधर छात्र इधर, जेपी उधर छात्र इधर। मतलब साला टोटल रेवोल्यूशन था, टोटल संपूर्ण क्रांति था देश में, संपूर्ण क्रांति। हेलो, नाइस टू मीट यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज दुलारी। तो आपका क्या नाम है? मैं बकरकाट, मैं बोलने का काम करता हूँ। आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता, लोग मेरे साथ सोते हैं। इसलिए राज दुलारी, क्या नाम दिया ईश्वर ने, मेरा तो दिल आ गया इस नाम पर। ये जो ब्राउन बालों वाला भयंकर सा आदमी है, ये कौन है? ये ब्राउन मुंडा है। ये परेशान होने पर व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है। आई मीन इसे मारने पर शोर करता है। आइए दिखाता हूँ। देखेंगे? आइए बेटा, ये देखिए। मेरे शरीर का खेलना बंद करो। महाराज दुहाई है, महाराज दुहाई है। क्या हो गया फूल कुमारी? महाराज 1 सप्ताह हो गया, मुझे ईश्वर ने थोड़ा भी पानी नहीं दिया। पानी के बिना मेरी पंखुड़ियां कैसी मुरझा गई हैं महाराज। अरे काश तुम ये दारू पीती रामपुर से लाया हो। ऐसी दारू तुम पे मैं 1000 कुर्बान करता। और मुझ पर भी कितनी धूल जम गई है महाराज। बहुत दर्द होता होगा ना तुमको। लेकिन फूल कुमारी, हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? हम तो साधारण वस्तु हैं। विधि के विधान के अनुसार हम अपने आप को ईश्वर से प्रकट नहीं कर सकते। बकरकाट, क्या समाचार है? आज तो समाचार और भी गंभीर है महाराज। दिन पर दिन ईश्वर पर विपत्तियों का साया गहरा ही होता जा रहा है। उसका तो मनोबल ही गिरता जा रहा है। ऐसा क्या हो गया? वही वेटर का काम है, रोज की चिलपों तो होगी। एक दिन एक बेवड़ा आ गया दारू पीकर और उसके सामने चिल्लाने लगा। इतने में उसका मैनेजर आ गया और उसने अपना सारा गुस्सा ईश्वर पर निकाल दिया। इस जालिम दुनिया में गरीब का सुनने वाला ही कौन है? और महाराज जी, महाराज
जो अपना ईश्वर है वो मानसी के प्यार में पागल हुआ जा रहा है और मानसी का प्यार उसको खोखला बनाती जाएगा। खोखला। और उसका हर वक्त आकर अनाप शनाप बकता रहता है। मतलब समस्या गंभीर है, लेकिन समस्या है क्या? अरे समस्या ये है बरखुरदार कि हम सभी का जीवन वो ईश्वर से शुरू होता है और ईश्वर अपनी विपत्तियों के कारण सुसाइड करने का सोच महाराज, सुसाइड करने का। अब बताइए अगर ईश्वर ही चले गए तो हम सबका क्या होगा? क्या होगा? हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। अगर समस्या और गंभीर हुई तो हमें अपने आप को ईश्वर से प्रकट करना होगा। अरे मेरी बोतल रुको, तंग आ गए लोगों के तलवे चाटते हुए। श्रुति की शादी है, पैसे चाहिए, कहां से आएंगे पैसे? अरे पैसे कहीं से भी आएंगे, तुम्हारे नौकरी छोड़ने से तो नहीं आएगा ना। मानसी का क्या? बैंगलोर में नौकरी मिल गई है, वहीं जाने की तैयारी कर रही है। अरे वो डायरेक्टर बोलता है ढोलक बजाने से क्या होगा, गिटार बजाओ तब नौकरी मिलेगी। यहाँ बोलते हैं क्लास आओ, बायोमेट्रिक लगाओ, ऊपर से साइन करो तब कोई नंबर मिलेगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है। तुमको साला पीकर बकर करने का आदत हो गया है। अरे आप खाना खाइए और चावल चाहिए? हमको नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, बस करो। अब जब तुमको मेरा बात सुनना ही नहीं है तो बोलकर क्या फायदा हो? ये भी रखो अपने पास, नहीं खाना हमको कुछ। और अपने औकात में रहना, तुम वेटर हो, वेटर ही रहोगे। अरे भाई साहब, प्रोफेशनल म्यूजिकल कंपनी, वी डोंट टेक इट आउटसाइड सिंगर। चलो प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम, चलो। अरे यार बताने का कहां से आ गया? हाँ माँ प्रणाम। कैसी है श्रुति? शादी का क्या हुआ? चाहिए थे, आप मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। अरे लेकिन वो कंप्लेंट मेरी टेबल से तो नहीं थी, मेरा नाम है तो क्या हुआ? नहीं नहीं, आप इस बात पे मेरे पैसे नहीं काट सकते। आए थे म्यूजिक डायरेक्टर बनने, बन गए वेटर। तिलक में 50,000 मांग रहे हैं, मानसी की हाथ छोड़ दो। भैया आप तो अब यकीन हुआ कि हम सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं। अरे लेकिन छोड़िए, आप ये बताइए आप सुसाइड करने कैसे सोच सकते हैं? किसी आदमी के जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, इसका मतलब ये थोड़ी है वो सुसाइड कर ले। आप मुझे ही देखिए, आप मुझे किधर छूते हैं और आपका हरामी दोस्त उधर छोड़ता ही नहीं। तब भी मैं चाहता तो फट जाता, लेकिन फटा क्या? अरे आप उनकी छोड़े, मेरी सुने। 1 साल पहले लेकर आए थे क्योंकि मानसी को फूल बहुत पसंद है, पर मुझे पानी ही नहीं देते। फूल तो क्या, पत्ते भी नहीं खिलते। मैं मरी बिना पानी के नहीं ना। अरे लेकिन चुप कीजिए। आप हर रात सोते वक्त मानसी मानसी करके मुझे कहाँ छूते हैं? अगर मैंने आपको चाइल्ड अब्यूज का केस कर सकता था, मैंने किया नहीं ना। और आप मरने की बात। हाँ, और मुझे तो ऐसे ट्रीट करते हो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। मुझे देखकर सजते संवरते हो, पर आज तक मेरे ऊपर जमी धूल को साफ नहीं किया। और मैं और महाराज मैं आपके हर दुख में हर सुख में आपके साथ रहा और आपने मुझे ही छोड़ के जाने का प्लान बना लिया है। बताओ, आपको तो यही लगता होगा ना कि आप चले जाओगे। तो चले जाओगे तो आपको ये लगेगा कि आप तो बड़ी खुदगर्ज हो। बताओ, अब आप हमको छोड़ के चले जाओगे तो हम सबको क्या होगा? बताओ क्या होगा? अरे लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। अरे वो मैनेजर अंग्रेजी में बोलता है शट अप डूड, डोंट वेस्ट माय टाइम। तो सारी परेशानी अंग्रेजी की है, राइट?
you mean to say that all this hype-hype credit just because of your inferiority complex, that you can't speak good English? No, that's absolutely ridiculous. I don't understand. What's so difficult in speaking English? ये कौन है भाई? याद है 10 साल पहले खरीदा था मानसी को इंग्लिश में लव लेटर लिखने के लिए। वो लेटर तो आज तक पूरा नहीं हुआ। बेचारी डिक्शनरी घर के कोने में सड़ती रही। So from now onwards, you will undergo a rigorous training by none other than me. Yes sir, ma'am. और रहा रोमांस की बात, तो वो तो मैं और फूल कुमारी तुमको ये चुटकी बजाते सिखा देंगे, चुटकी बजाते। भाई सुर और सुंदरी का तो चोली दामन में साथ रहा है। क्या अर्ज किया है? अर्ज किया है कि थोड़ी पीते हैं शराब, थोड़ी पीते हैं शराब, थोड़ी उछाल देते हैं। अरे हम तो बैठे बैठे बुड्ढों में से जवानी निकाल देते हैं। कुछ करना पड़ेगा। और हम मिलकर ऐसी ध्वनि निकालेंगे, हर म्यूजिक डायरेक्टर की फोटो पे एक ही नाम होगा, ईश्वर। ईश्वर। So today I will give you sentences and you will translate them in Hindi. My name is Ishwar and I've come for an interview. बोलते नहीं ना, अच्छा लग रहा है। Concentrate, answer me. Repeat after me. My name is Ishwar. My name is Ishwar. And I have come for an interview. And I have come for interview. Very nice, very nice. अरे भाई, लड़की को चाहिए थोड़ा सा प्यार, थोड़ी नजाकत, थोड़ा सा टेडी और थोड़ी बियर। कुछ किया उनमें से? नहीं ना? देखो हम सिखाते हैं कि मान लो ये है तुम्हारी मार्क्स कि 14वीं की रात थी, सब कहा चर्चा था, किसी ने कहा ये चांद है, किसी ने कहा चर्चा तेरा है। वाह 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 वाह। अब तुम करो। म्यूजिक डायरेक्टर हमारा गाना सुन के एकदम फ्लैट। ना सिर्फ उसने ये गाना चुना, 2 गाने और लिखने को कहे हैं, और तो और ये भी कहा है हर गाने में ढोलक होना जरूरी है। और यही नहीं, हमारी फर्राटेदार अंग्रेजी सुनकर 30,000 रुपए महीने में पीआर की जॉब भी लगी। हाँ, आते वक्त माँ को कंप्यूटर से पैसे ट्रांसफर करके आ रहा झट मंगनी और पट गया। अबे और ये बताओ, मानसी बताओ, मानसी मानसी। हमारा आशिकाना इजहार देखकर मानसी से मना ही नहीं किया गया। तुम भी क्या याद रखोगे, तुम्हें भी मिलवाता हूँ मानसी से। मानसी जरा इधर आना।
में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यहाँ सभी है तन्हा, तुम भी खुद को बदल सको तो चलो। जिंदगी बस यही है, कुछ ख्वाब चंद ख्वाहिशें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी अगर बहल सको तो चलो। Respected sir, I would just like to introduce the cast. So we had Bharani as the music director. The best music you saw was Bharani's, and we had Ashwin on the prod, all the running around on the stage. We had Nitya as the friend. We had Yagvendra Bhati as the music director and also on the voiceovers. We had Prachi as dictionary, Payal as Kamla, Bharani as Tyagi as Dholak, the lead played by Ayush as Ishwar. We had Kruti as Mansi, and also on the lights. We had Ekta as Aina. We had Pukhraj as Daru. We had Shivendu as radio. We had Pramod as Takia. We had Rishi as playing death. We had Deepak on the spotlights. We had Gaurav as the additional director and also on the lights. And we had Tejas for the costumes and also for the props. And the play is written and directed by दोस्तों, ये दर्द भरी दास्तान ही नहीं, ये दर्द की दास्तान है। वैश्या थी वो, नाम था उसका पीरन। उसके जिस्म से बहुत सारे गीदड़ों ने खिलवाड़ किए, जुल्म और सितम ढाए, मगर इन सब से वो लड़ती रही, इन सब से वो हारी नहीं। मगर इस पीरन को तोड़ने वाली चीज वो दिल के रिश्ते थे। जब वो धागा टूटा तो वो इस दर्द को बर्दाश्त न कर सकी। आपके सामने पेश है एक अंकीय नाटक पैबंद। इस मृत शरीर को मुखाग्नि कौन देगा? मृतक का एक बेटा था, आता ही होगा। अरे जरा जल्दी कीजिए, मैं वैसे भी यहाँ आ नहीं रहा था और खुद की बेइज्जती भी हो रही है। मैं विलम्ब हो तो आप खुद लेके आए। मृतक का बेटा आ गया। कम से कम 2 और लोगों का प्रबंध कीजिए मिट्टी लाने के लिए। मिट्टी लाने मैं शमशान नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं माई को बस एक बार देखने आया। घर तो मैं बहुत पहले छोड़ चुका, लेकिन वो लोग कहाँ हैं जो दिन रात कोठे पर भिनभिनाते रहते थे मक्खियों की तरह, जिनके साथ उन्होंने पूरा जीवन गुजारा? वो लोग नहीं आएंगे हल्की उठाने? क्यों आएंगे वो लोग? वैश्या की देह में सबको दिलचस्पी होती है, सबको गर्म गोश्त चाहिए होता है, और ये तो ठंडी पड़ चुकी है, नोचने को मांस तक नहीं बचा है। हाँ, वो दौर और था जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था। बाजार सजे हुए थे, कोठे पे रौनक थी, और पीरन के चाहने वाले लार टपकाते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे।
हुआ है तो आया हूँ। आज तो एक और भी है मेरे साथ। इतना क्या शर्मा रहा है? यहाँ तो सब बेशरम है। बोल, कौन चाहिए तुझे? पहली बार है जनाब का, पीरन से बेहतर होगी क्या? बुलाइए पीरन को। पीरन, नवाब साहब को दूल्हा बना दो आज। चलो आ जाओ। जरा ठहरिए, पहले कुछ बात कर ले। चलो मौसी, हमें भी तो कहीं की चटनी चटा दो। आप बताओ क्या बात करनी है? बस ऐसे ही कुछ। देखो उसके बिना करना हो तो नहीं होगा। हाँ? नहीं, उस बारे में बात नहीं करनी है। बस कुछ बात कर लीजिए जिससे इत्मीनान हो जाए। जैसे? जैसे आप इस धंधे में कैसे आए? मेरा वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से फारिग हो और निकल जाओ। जी माफ कीजिए, इतनी जल्दी मैं नहीं कर सकता, कुछ बात ही कर लीजिए। अरे हर दूसरा आदमी यही पूछता है। बताते बताते तो मुझे आदत हो गई है। मैं और मिशन खेल रहे थे ऐसे ही गिल्ली डंडा। बारी किसकी थी इसमें से झगड़ा हो रहा था। मैं कह रही थी अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है। हर बार तुम्हारी बारी क्यों होगी? तुम ना हर खेल में बेईमानी करते हो। अब गिल्ली भी इतनी दूर फेंक दी, मुझे ही लानी पड़ेगी। उस दिन पहली बार गांव में मैंने किसी कोट पैंट वाले आदमी को देखा था। एक पल रुकी और फिर खेलने में मस्त हो गई। बापू बापू। राम राम सरकार। राम राम। देखो, हमें यहाँ एक बिल खोलनी है, उसके लिए हमें मजदूर चाहिए। पैसे की चिंता मत करो, प्रतिदिन 20 रुपए मिलेंगे। 20 रुपए तो कम है सरकार, घर में बीवी है, बिटिया है, इसमें तो खाने का भी नहीं होगा। अरे क्या हुआ? जितने लोग काम करेंगे उन लोगों का खाने का हो जाएगा। तुम अपनी बीवी को भी ले आओ, पैसे वह भी कमा लेगी। बाकी तुम्हारी बिटिया को मैं शहर ले जाऊंगा, वो कढ़ाई बुनाई का काम कर लेगी। शहर तो दूर है साहब, अगर कुछ बयाना मिल जाता तो तसल्ली होती कि बिटिया का ख्याल रखेंगे और बिटिया वापस भी आएगी। 300 रुपए बयाना ठीक रहेगा? जी सरकार। वैसे तुम्हारी बिटिया काम करने लायक है, इसे जांचा परखा नहीं है मैंने अभी तक। कहीं ऐसा ना हो मुझ पर बोझ बन जाए। इधर आ। देखो सरकार, एक भी आंसू नहीं गिरे इसके। यूं तो तुम मिल में काम करने के लिए बिकी थी ना, तो फिर इस धंधे में कैसे? मेरा मतलब वो पहली बार वो। अरे वो क्या कर रहे हो? आराम से पूछो। बिस्तर के सफरनामे की पहली शुरुआत कैसे हुई, यही पूछना चाहते हो ना? जी मेरा मतलब वही था। सच बताऊं तो मुझे याद भी नहीं। पूरा दिन मिल में बेगारी करती थी। पैसे तो नहीं मिलते थे। अरे पैसे तो नौकरों को मिलते हैं, गुलामों को कहाँ। हाँ लेकिन खाना मिलता था, बचा कुचा। मिल से घर जाती थी तो मालकिन के पैर दबाती थी। मालकिन से छुट्टी मिलती थी तो मालिक के पास जाती थी। पूरी रात रौंदता था साला, कोई छुट्टी नहीं। उस वक्त तो मैं इतनी कच्ची थी कि मेरी महावारी भी नहीं आती थी। इस सब का तो मतलब भी नहीं समझती थी मैं। मालिक के साथ सोना और मालकिन के पैर दबाना, इसमें मैं कोई फर्क नहीं समझती थी। हाँ बस इसमें दर्द बहुत होता था, बहुत ज्यादा। एक 9-10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म? दुष्कर्म ऐसे कह रहे हो जैसे कोई यज्ञ किया उसने। अच्छा बताओ, तुम आज कौन सा दुष्कर्म करना चाहते हो? जी माफ कीजिए, मैं चलता हूँ, शबक है। इस कठोर जिंदगी के दलदल में हलवा को हर रोज का ताना सुनना पड़ता था। अरे क्या करते हो तुम दोनों? नहीं
संदीप बाबा और बड़े की दुकान में काम करते हैं। और तुम्हारा? नहीं है। अरे तो इससे ज्यादा शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। जब तुम्हारी माँ को पता लगेगा तो क्या गुजरेगी उस पे। वैसे करती क्या है तुम्हारी माँ? अच्छा, खैर झगड़ा किस बात पे हो रहा था तुम्हारा? मास्टर साहब ये हमें हरामजादा बोले थे। नहीं, मैं मास्टर साहब, मैंने सोच नहीं बोला, मैंने सोच नहीं बोला। बाहर जा, तुझसे बाद में बात करते हैं। हरामजादे का मतलब जानता है? हराम की पैदाइश। अरे तो क्या गलत कहा था उसने? तुझे तेरे बाप का पता है? पता नहीं कितनी रातें तेरी माँ ने रंगीन करी होगी जो तू पैदा हुआ। मतलब ये कैसी बातें कर रहे हैं? चुप कर, अब जबान लड़ा के हरामजादी बच जाता। मेरी तरफ क्या देख रहा है? देख तो ऐसे रहा है जैसे मैं तुझे गोद लेकर भी जान तलाक बना दूंगा। चल दफा हो यहाँ से। पैसे पहले देने पड़ेंगे, मौसी के पास लेके आना। अरे दे दिए मेरी जान, बस अब तू आ जा। ए हाथ छोड़, चल कमरे में चल। कमरा मत बोल रानी, जन्नत है ये जन्नत। ए हाथ छोड़, चल। अरे गहने तो उतार दे। भाई मौसी यहाँ पीना मना है, पीना है तो बाहर जाके पी के आ। कपड़े उतार जल्दी, अभी मेरा माहौल बना है, बिगाड़ मत। छोड़, चल, बदतमीजी मत कर। चुप हो जा साली। मेरा जो मन आएगा, जैसे मन आएगा मैं वैसे करूंगा। पैसे दिए तेरी मौसी को? पैसे दिए है मतलब क्या खरीद लिया है क्या तूने? अरे 1 घंटे के लिए तो खरीद ही लिया ना। बीवी नहीं है तू मेरी, बीवी की तरह करना होता तो घर जाता। वैश्या है तू, वैश्या, वही काम कर, चल। चलो कमरे में। नहीं, आज भी बात करना बेहतर मालूम होता है। जैसे तुम ठीक समझो। वैसे भी जबरदस्ती करूंगी तो बलात्कार कहलाएगा ना। मैं फिर से आपकी पुरानी जिंदगी में दखल दूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? बुरा तो नहीं मानूंगी, लेकिन फिर से वही यादें। खैर पूछो जो पूछना है। आपका कभी निकाह, मेरा मतलब शादी हुई थी? पक्की उम्र की हुई तो मालकिन ने मेरी शादी करा दी थी। उसी से हुआ मुझे ये लड़का, हरुआ। इतना नन्हा सा प्यारा सा था ये, लेकिन उसी पति ने मुझे इस कोठे तक पहुंचा दिया। साला पूरा दिन दोस्तों के साथ जुआ और नशा करता रहता था। केवल 3 ही गिलास लाई भाभी, एक अपने लिए तो ला। मैं ये सब नहीं पीती, आप लोग पीजिए, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। अरे जा खा रही हो भाभी, हमारे पेट भरे, बस थोड़ी प्यास लगी थी जो बुझाने आए हैं। थोड़ी शराब बुझा देगी, थोड़ी आप। ये कह क्या रहे हो? तुम देख क्या रहे हो? ज्यादा नाटक मत कर, जबरदस्ती की पतिव्रता बन रही है। आज के अलावा किसी और मर्द के साथ सोई नहीं क्या? देख ना नहीं कर पाई ना तू, ना नहीं कर पाई ना। अरे मैं तो सुहागरात के दिन ही समझ गया था, एक कतरा खून नहीं था छत्तर में। बच्चा ना औरत, अभी तक खुद के मजे के लिए करते आई है, आज मेरे उद्धार के लिए करते। चल कपड़े निकाल अपने। क्या शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब कहते हुए? नहीं आती है शर्म। तेरे बच्चे को ही मार डालता हूँ, वैसे भी मेरा तो नहीं होगा ना। क्या? नहीं, बच्चे को नहीं।
नहीं 9 महीने में जन्म दिया था तूने। नहीं पता नहीं किसी और का पाप का तेरे कोप में नहीं और मुझे फंसा लिया। कितना प्यारा है ना, कितना प्यारा है ना। चल करने दे उन्हें, करने दे। और हाँ, एक साथ नहीं, एक एक करके। कुछ और अरसा गुजरा, कई बसंत बीते, अरुआ ने इन्हीं परिस्थिति और हालात में अपने बचपन से बड़प्पन तक का सफर तय किया। अरे सोमरी, आज बड़े दिनों बाद अपने सहेली की याद आई, क्या बात है? क्योंकि हरुआ के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं बीरन। क्यों? ऐसा क्या किया मेरे हरुआ ने? कल पनवाड़ी की दुकान पे देखा था मैंने उसे, और दारू के नशे में पूरा धुत आवारा लड़कों के साथ घूम रहा था। मौसी तो कह रही थी कि वो किसी दूसरे कोठे पे भी गया था। क्या? मेरा हरुआ भी? अरे रोज कह के जाता है कि मैं लक्ष्मण सिंह के यहाँ काम करने जा रहा हूँ। माई, वो हमारा गमछा कहीं रह गया था, देखी क्या? बड़ी धूप लगती है ना तुम्हें, बड़े काम होते हैं गोदाम पे। बेशरम, लफंगा ही कर रहा है ना तू? ये क्या कह रही हो माँ? और नहीं तो क्या, सुबह सुबह बड़ा ढोंग करता है। लक्ष्मण सिंह का बेटा हमें जूते से मारता है। अरे कितने महीने हो गए गया नहीं है तू वहां पे। बचपन में स्कूल भेजा तो मास्टर की डांट इनसे सही नहीं गई। अभी इतनी मिन्नतें करके तुम्हें काम दिलवा दिया तो वो भी नहीं करना है तुझे। कर क्या रहा है तू? चुप करो माँ। जब देख रहा हूँ बोले जा रही हो, बोले जा रही हो। यहाँ घर चलाता हूँ और तुम्हें पालता पोसता हूँ मैं। तू मुझे पालता है, तू मेरा बोझ ढाएगा। चल दूर हो जा मेरी नजरों से, वरना एक तमाचा रसीद दूंगी। अरे तो गलत क्या किया मैंने? इंसान वही तो करेगा ना जो बचपन से उसे सिखाया जाएगा। यहाँ हर रोज हर रात 10-15 नए मर्द आते हैं, मैं किसी दूसरे कोठे पे चला गया तो क्या गलत किया मैंने? और वो तुम्हें लगता है कि जूते की वजह से हम लक्ष्मण सिंह के घर के काम नहीं करते? रोज अपने और अपने दोस्तों के साथ बैठ के मुझे तुम्हारे साथ गुजारी हुई रातों के बारे में बताता है। वो उसके फोन में पूरा एक फोल्डर है तेरा माई। हर एक फोटो हर एक वीडियो मुझे बार बार दिखाता है। तू करेगी ऐसे काम, ऐसे करेगी काम तू उसके यहां? आज के बाद तेरा और मेरा रिश्ता खत्म, समझी? नहीं हरवा नहीं, हरवा नहीं, हरवा नहीं, हरवा। हरुआ के जाने का दर्द तीरन बर्दाश्त न कर सकी और इस बोझ से वो घुट घुट कर मरती रही। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे जीवन में मेरे बेटे हरुआ के अलावा मुझे कोई भी आया नहीं था, पर बाकी सबकी तरह वो भी मुझे छोड़ के चला गया। शायद मेरी गलती थी, मेरी गलती थी, है ना? बचपन में बापू के सिर पे बोझ थी मैं, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे बेच दिया। पर फिर भी अपने दिल को दिलासा देती हूँ मैं, ये सोचकर कि बापू के मन में मेरी कीमत कम से कम 300 रुपए की तो थी। और मेरे पति भी तो कितनी परेशानी में थे। उस रात, उस काली रात, शायद उनके दोस्तों के साथ सोकर मैंने उनके कुछ पैसे तो जरूर बचाए होंगे। उनकी पत्नी होने के नाते इतना तो मैं कर ही सकती थी, पर इसके बावजूद भी मैं उन्हें खुश ना कर सकी। इतना कुछ करके भी मैं उन्हें खुश नहीं कर सकी। हाँ, मेरा बेटा हरुआ, मेरा प्यारा हरुआ, वो इन सबसे बहुत दूर था, बहुत दूर। बहुत कोशिश की मैंने, बहुत कोशिश की, पर मैं उसे भी इस दलदल से बचा नहीं सकी। बहुत गुस्से में गया था उस दिन घर छोड़कर। आज भी उसकी कही हुई एक एक कड़वी बात मेरे दिल में तीर की तरह चुभती है।
इस दुनिया में किसी भी इंसान ने मुझे इतना दर्द नहीं दिया जितना मेरे बेटे हलवा की कड़वी बातों ने दिया था। बस उसी दिन से मैं जिंदा लाश की तरह घूम रही हूँ। मौत तो मेरी कब की हो चुकी है। आज तो बस इस पूरी दुनिया की तरह इस शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया है। आत्मा मुझे कितना कचोटती है, जैसे मैं एक कीड़ा बन गया हूं, देखने वाला एक घिनौना कीड़ा। मैंने अपनी माँ को क्या क्या नहीं बोला, क्या नहीं बोला अपनी माँ को। खिलाती है मुझे अपने आप से। उस दिन जी में आया कि मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन मैं कायर नहीं हूं। मगर लोगों की घृणा बड़ी नजरों से मुझे बहुत डर लगता है, बचपन से डर लगता है। मगर आज की बहुत याद आती है। माँ, मेरी माँ मुझे वापस कर दो। पूरी लाइट्स, पूरी साउंड्स, पूरा स्टेज सेटअप इन्हीं की बदौलत है। एंड सबसे पहले जिनकी आपने आवाज सुनी, हमारे नरेटर बिलाल। हिंदी ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस सबसे पहले पंडित का रोल किया तुषार केन। इसके बाद पीरन की कहानी आप तक पहुंचाने के लिए शायर का रोल किया मानस सिंह। उसके बाद सोमरी पीरन की दोस्त निशा। मौसी का रोल किया जो कि सबसे डिफरेंट कैरेक्टर रहा हमारा, ऋतुराज। फिर मदन का रोल किया आलोक। एंड हमारे प्ले की प्रोटैगनिस्ट पीरन का रोल निभाया कस्तूरी सुलेख। पीरन का बचपन का रूप बहुत अच्छे से दर्शाया काजोल पाटिल। मिल मालिक जो थे हमारे तरनजीत। उसके बाद पीरन के बापू का रोल फुरकान शायद स्टेज के पीछे है। और दो टीचर थे हरवा के बचपन में, जिनका रोल टीचर 1 अंकित और टीचर 2 मैं। हरवा का क्लासमेट एक था हैदर, जिसकी उससे लड़ाई होती रहती थी, हैदर। राकेश। राणा का रोल प्ले किया बहुत अच्छे से मयंक। फिर पीरन के पति का रोल निभाया अभिजीत। उसी पति के दो दोस्त भी थे, दोस्त 1 दोस्त 2, विकास एंड विक्रांत। उसके बाद पीरन, जो फ्यूचर पीरन हमने दिखाने की कोशिश करी, सुरभि। वन मोर कैरेक्टर। एक कैरेक्टर ऐसा था जिसका हमारे प्ले में डायलॉग नहीं था, उनकी स्टेज प्रेजेंस थी, नवाज, जो कि मिल मालिक के ड्राइवर थे। और फाइनली मैं बताना चाहूँगा, ये ओरिजिनल प्ले है जो सक्सेना ने लिखा है, तो ही इज द स्क्रिप्ट राइटर एंड ऑल्सो ही इज द डायरेक्टर। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सक्सेना। थैंक यू ऑल, साइनिंग ऑफ।
जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। अनुज जो बहुत ही मेधावी छात्र था, अपने हर कार्य को ईमानदारी से पूर्ण करता था तथा आज एक बड़ी कंपनी में कार्यरत है। वह आज अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से एक रास्ता तो फूलों भरा है तथा दूसरा रास्ता चुनौतियों से परिपूर्ण है, परंतु वह रास्ता उसको उसकी मंजिलों तक ले जा सकता है। आइए देखते हैं अनुज ने कौन सा रास्ता चुना और उस रास्ते में उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रस्तुत है एक नाटक स्वयं की खोज। यार शेखर, ये वर्क फ्रॉम होम ने तो पूरा दिमाग खराब करके रख दिया है। पहले 8 घंटे ऑफिस में काम करने के बाद सुकून तो होता था, अब यहाँ 12 घंटे काम करने के बाद भी ऐसा लगता है कि ऑफिस में ही बैठे हुए हैं। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच तो कोई डिफरेंस ही नहीं रह गई है। कब वीकडे होता है, कब वीकेंड आता है, कुछ पता ही नहीं लगता। और सारे फसाद की जड़ तो ये मोबाइल फोन है। जब देखो तो बॉस का मैसेज आ जाएगा, कभी ये डेडलाइन, कभी वो डेडलाइन। रात के 2 बज रहे हैं या सुबह के 4, कोई फर्क ही नहीं पड़ता इनको। अरे अपने नींद की परवाह नहीं है तो मुझे तो सोने दो। बंदा सोएगा नहीं तो काम कैसे करेगा? यार शेखर, तू सुन भी रहा है? तू भी मोबाइल में लगा हुआ है। अरे अनुज यार, इतना परेशान क्यों होता है? एक तो तू वैसे ही ऑफिस में इतना काम करता है और फिर भी परेशान रहता है। देख, अब प्रेजेंटेशन हो गई ना, बॉस का काम कर दिया, तो चल अब इंस्टाग्राम चेक करते हैं, देखते हैं कोई नया ट्रेंड आया है क्या श्रीवल्ली और कच्चा बादाम के बाद। www.instagram.com। यार एक कच्चा बादाम ने तो दिमाग खराब करके रख दिया है, अभी तक चल रहा है। और ये तो आईपीएल चल रहा है बस 2 दिनों में। या तो माई भाई देखते हैं या तो दवाई दवाई, और कुछ भी है? अरे ये तो अमन है ना? ये अमन भाई जिसका यूपीएससी हो गया था भाई ना? अरे हाँ हाँ, हम दोनों साथ में तैयारी करते थे। हाँ तूने बताया तो था, पर ये है कहाँ? विलेज विजिट, ये क्या होता है? अरे ये इनके ट्रेनिंग का पार्ट है। ये गांव में जाते हैं, लोगों की समस्याओं को समझते हैं, उनका समाधान करते हैं। क्या लाइफ है यार इनकी। यार हम ही लोग यहाँ पे फंसे हुए, बस प्रेजेंटेशन, डेडलाइन, कोडिंग, एकदम झंड हो रखी है पूरी। पर तूने बताया तो कभी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था? हाँ यार, मेरा बचपन से मन था मैं लोगों की मदद करूं, सोशल वर्क करूं, पर तुझे तो पता ही है फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मुझे जॉब करनी पड़ गई। मन में कसक रहेगी ये। भाई दिल छोटा मत कर, तुम अभी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। अब कहाँ होगा यार, अब तो ऐसे इतना वर्कलोड है और पढ़ाई से टच भी तो छूट गया। देख पढ़ाई की बात तो तू मत कर, क्योंकि तू बहुत जीनियस है। अरे यार कुछ। और रही बात ऑफिस की, तो ऐसा कर, सबैटिकल ले ले और आराम से प्रिपेयर कर। सबैटिकल? बॉस से 1 दिन की छुट्टी मांगो तो उसका बीपी हाई हो जाता है, तो सबैटिकल देगा। देख तू बॉस का फेवरेट है, बॉस झट से मान जाएंगे, तो मैं जैसा कह रहा हूँ बस वैसा ही कर। यार मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है, चल कोशिश करता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। यूपीएससी की तैयारी करेगा और ऑफिस से सबैटिकल लेकर तैयारी में जुट जाता है। आयुष बहुत ही मेहनत से प्रीलिम्स की परीक्षा की तैयारी करता है। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास। और आखिरकार प्रीलिम्स की परीक्षा का दिन आयुष ने बहुत ही मेहनत और लगन से परीक्षा लिखी। परिणाम का दिन आखिरकार आयुष ने प्रीलिम्स की परीक्षा उत्तीर्ण कर ही ली। वह आज बहुत खुश है, परंतु उसके सामने अभी एक और बड़ी चुनौती है। उसकी छुट्टियां खत्म हो रही हैं और मेंस की परीक्षा भी नजदीक है। फिर आयुष को वो पंक्तियां याद आती हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी जोश के साथ आयुष नौकरी से इस्तीफा दे देता है और पूरी मेहनत से मेंस की तैयारी में जुट जाता है। अफसोस, आयुष यह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। अब आयुष क्या करेगा? कौन सी राह अपनाएगा? आइए देखते हैं। भगवान है कहाँ रे तू,
तुम ये कितना बड़ा पाप करने जा रहे थे? क्या मैं तुम्हारी जिंदगी से 5 मिनट मांग सकता हूं? तुम्हारे इस कुकृत्य की वजह क्या है बच्चा? बाबा, मैं अपनी नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था बाबा। मैंने पूरी मेहनत और लगन से तैयारी करी, पर मैं असफल हो गया बाबा। यूपीएससी कितने अटेम्प्ट दिए बच्चा? बाबा 4 अटेम्प्ट दिए। मैंने अपना जो हो सकता था दे दिया, बस अब मैं चाहता हूँ ये खत्म हो जाए। बाबा आपके भी तो 6 अटेम्प्ट थे। और तो और बाबा, मेरी गर्लफ्रेंड जो मेरा हमेशा सपोर्ट करती थी, मेरी नौकरी छूट जाने और यूपीएससी में असफल होने के बाद वो भी मुझे छोड़ के चली गई बाबा। बाबा आपकी चिंकी मिंकी भी तो छोड़ के चली गई थी। तो साहस बच्चा, तुम्हारा यूपीएससी, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? जी बाबा। मेरे एक हाथ में है 1 रुपए, दूसरे हाथ में है 1 लाख रुपए। इन दोनों में से तुम कौन सी राशि लेना पसंद करोगे? 1 लाख बाबा। 1 लाख रुपए। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? ये तो स्वाभाविक है बाबा, इसका मूल्य अधिक है। अति उत्तम जवाब। अब ध्यान से सुनो बच्चा, ये 1 रुपए है तुम्हारी बीती हुई जिंदगी, जिसमें तुम्हारी पुरानी नौकरी और गर्लफ्रेंड थी, और ये 1 लाख रुपए तुम्हारा आने वाला कल है, जिसमें तुम स्वयं के लिए, अपने माता पिता के लिए काफी कुछ हासिल कर सकते हो। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि यूपीएससी क्लियर करने का तुम्हारा मुख्य मकसद क्या था? बाबा, मैं लोगों की मदद करना चाहता था, लोगों की सेवा करना चाहता था बाबा। सेवा यानी समाज सेवा। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे समाज सेवा के लिए प्रेरणा का स्रोत क्या था? मेरे प्रेरणा स्रोत हमेशा से स्वामी विवेकानंद रहे हैं बाबा। स्वामी विवेकानंद जी, अति उत्तम, अति उत्तम। वो तो हमारे लिए भी आदर्श हैं। तो क्या उन्होंने समाज सेवा के लिए यूपीएससी जैसा बड़ा एग्जाम क्लियर किया था? नहीं बाबा। तो समाज सेवा के लिए लगन, निष्ठा और सच्चाई मन में होनी चाहिए, और उससे भी जरूरी ज्ञान होना चाहिए, जो मैं तुम्हारे अंदर साफ साफ देख सकता हूँ। अपने अंतःकरण का अवलोकन करो और समाज में गरीब, लाचार, भिखारी लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दो, तब जाके तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बाबा जी जय हो। ये बदलाव कैसे लाएगा? और तभी उसे कुछ पंक्तियां याद आती हैं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। मालिक, मालिक, 5 दिनों से कुछ नहीं खाया। अल्लाह के वास्ते कुछ खाना मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। साहब, बहुत ठंडी है, एक कंबल मिल जाता, बड़ी मेहरबानी होती साहब। बेटा, इन खाना और पैसों से हमारे कुछ दिन का तो गुजारा चल जाएगा, पर यदि तुम हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हो, हमारे रोज रोज के संघर्षों से हमें मुक्ति दिलाना चाहते हो, ताकि मैं इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर सकूं, तो बच्चा हमें रोजगार दिला दो। समाज की इन सब परेशानियों को देखकर अनुज इस सोच में पड़ जाता है कि वह करे तो करे क्या। वह अपनी खोज में तो निकल चुका है, पर वो उसे कहाँ लेके जाएगी। काफी सोच विचार करने के बाद, काफी लोगों से बात करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे अपनी खुद की एक संस्था शुरू करनी चाहिए, ताकि वह समाज के जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सके। काफी परेशानियों का सामना करने के बाद अनुज एक स्वयंसेवी संस्था की शुरुआत करता है, जिसमें धीरे धीरे उसके कई मित्र उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो आइए देखते हैं अनुज की वो कहानी 5 साल बाद।
ये एनजीओ जो हमने कुछ साल पहले खोला था, आज इसको समाज में सम्मान और सरकार की तरफ से प्रोत्साहन भी मिल रहा है। ये सब तुम्हारे उस फैसले का नतीजा है। नहीं आदित्य, इसमें सिर्फ मेरे अकेले की मेहनत नहीं है, इसमें हम सभी का योगदान है। मैं तो खुद अपने जीवन से हताश एवं निराश होकर खुदकुशी करने जा रहा था। फिर मुझे स्वामी जी मिले, जिन्होंने मुझे अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और मैं स्वयं की खोज में निकल पड़ा। तुम्हारी कहानी तो काफी प्रेरणा स्रोत है। अनुज, क्या तुम इसको जानते हो? नहीं। उस्मान, नवीन, रश्मि, इधर आओ। अनुज, ये उस्मान है। ये हमारे एनजीओ का एक बहुत हुनर एम्प्लॉई है। इन्वायरमेंटल सेक्शन संभालता है, जिसने जगह जगह जाकर वृक्षारोपण किया और स्वच्छ भारत अभियान में भी अहम योगदान दिया। साहब, आपको याद नहीं होगा, परंतु मुझे याद है, वर्षों पहले आपके पास मैं भीख मांगते हुए आया था, परंतु आपने हमें जीविका दी और हमारा जीवन की लक्ष्य बदल दी। साहब, आपका लाख लाख शुक्र। बेटा, मेरा बच्चा अब स्कूल जाने लगा है और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहा है। सब आपकी मेहरबानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमें यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारी एक मुहिम के कारण उस्मान, नवीन, रश्मि, ना जाने कितने लोगों के जीवन की दिशा बदल गई और यही एक सच्ची समाज सेवा है। क्यों सही कहा ना आदित्य मैंने? हाँ दोस्तों, जैसे हमें अपने जीवन की राह मिली, हम चाहते हैं आप भी अपने जीवन की विफलताओं से ऊपर उठकर अपने जीवन के लक्ष्य को पहचाने और अपने जीवन को सार्थक बनाने की मुहिम में जुट जाएं। खुल रहा है स्याही का डेरा, हो रहा है मेरी जान सवेरा। ओ जीवन से हारने वालों, आजीविका का होगा सवेरा। अब मैं आप सबकी पहचान कराना चाहूंगा हमारी इस टीम से। अनुज का रोल प्ले किया था आयुष ने, अनुज के मित्र का रोल प्ले किया अमन ने, स्वामी जी का रोल प्ले किया है प्रशांत पासी ने, स्वामी जी के दोनों शिष्य का रोल प्ले किया था अवनीश और मोहित ने। टीम गरीब और दरिद्र लोग जो बाद में समाज में ऊपर उठ पाते हैं, वे कुछ इस प्रकार थे। उस्मान अर्थात अयान साहब, नवीन वैभव पोद्दार, रश्मि देविका पूजा कर, रमन लापरवाह रमन, रमन मनमोजी रमन, रमन जिसने अपनों को खोया, रमन जो खोकर सीखा। आइए देखें। अरे सुनील जी, हमारी टिकट कब की है? 30 तारीख की है। बैग पैक कर लो तुम लोग। अरे चल चल चिंटू, बैग पैक कर चल। नहीं, मुझे नहीं जाना है, हम यहीं पर रहेंगे। पेपर में ये सब क्या आ रहा है? कोरोना, कोविड, ये कौन सी नई प्रजाति आ गई है? लोग इसे क्यों खाते हैं? पता नहीं कहाँ से आया है। ये चाइनीज लोग कुछ भी खाते हैं और उसका भुगतना हमको पड़ता है। अरे दादाजी, पूरे दिन टीवी पर यही कोरोना कोरोना आता रहता है। अब तो हम लोग भी बोर हो गए, अब तो बस गेम ही खेल सकते हैं हम लोग। और क्या है ये कोरोना? ये कोई नई बीमारी है, जो लोग बाहर जाते हैं ना उनको हो जाता है। अरे क्या यार, तुम लोग दिन भर कोरोना कोरोना, पूरे टीवी वाले भी कोरोना चला रहे। कुछ नहीं है कोरोना, मेरे ऑफिस में भी हुआ था, 2-3 दिन में ठीक हो गए हो। कुछ कोरोना नहीं है, हम चलेंगे। चल चिंटू, पैकिंग कर, खिलौने पैक कर। पिंटू बेटा, रिमोट लाओ। और इस बीच हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जल्दी से कैश लाओ, एटीएम लाओ, कुछ तो बड़ा धमाका होने वाला है इस बार, पिछली बार की तरह। महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात
आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। अरे लॉकडाउन? लॉकडाउन मतलब सब बंद? ऐसे कैसे चलेगा? अरे कुछ नहीं लॉकडाउन। पूरे देश को लॉकडाउन करना पॉसिबल है क्या? 10 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा। हमारी टिकट तो 15 दिन बाद की है ना, कोई टेंशन नहीं। तुम जाओ, पैकिंग करो। अरे यस, ये सब बंद हो जाएगा। ये बहुत लंबा चलना चाहिए। स्कूल बंद, क्लास बंद, एग्जाम नहीं, नो बायोमेट्रिक, नो अटेंडेंस, सब अच्छा होगा। हम लोग बस गेम खेलेंगे घर में बैठ के। अब तो मौज ही मौज है, छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। यस यस, चल तुम पढ़ाई करो, चलो चलो अभी पार्क चलते हैं। पार्क? पता नहीं तुमको लॉकडाउन लगा है, बाहर जाना मना है। अरे हटाओ, क्या लॉकडाउन है? रोज तो मैं पार्क जाता हूँ, आज नहीं, क्या बात हुई? चलो मैं निकलता हूँ। एटलीस्ट मास्क लेते जाओ। अरे हटाओ ये मास्क। पार्क जाते ही लोग इसलिए ताकि सांस ले सके। अभी वहां पे भी बैलों की तरह लगा के बैठूं मैं। चलो निकलता हूँ मैं। और भाई नासा में नौकरी लग गई क्या? ये क्या नया कॉस्ट्यूम पहन रखा है? रेनकोट पहना है क्या? भाई ये नासा नहीं है, पीपी किट है। तुम भी पहनो, कोरोना से बच जाओगे। अरे हटाओ यार, नाक से आ रहा है, पूरे बॉडी में क्यों पहन रखा फिर? भाई आप बात मान लो, आप भी पहन लो। कहाँ बाहर घूम रहे हो? चलो छोड़ो, हम तो एक्सरसाइज करेंगे। भाई लॉकडाउन है, बाहर मत जाओ, पुलिस डंडा मारेगी। हटाओ यार, आप भी अपने बीबी के साथ मजा करो, सब लोग कर रहे हैं। जाओ। अरे मंगी राम जनाब, ये कौन है बावड़ी की तरह भटक रहा है? जनाब पूछ ले। ओए इधर आ, बावड़ी की पूछ। पता नहीं क्या करने, लॉकडाउन लगा है। अरे चाचा विधायक है हमारे, क्या कर लेंगे? तो तेरा लॉकडाउन में क्या कोरोना नहीं होगा? अरे होगा तो देख लेंगे, कुछ कोरोना वोरोना नहीं, 2 दिन में हो जाते थे। जनाब की तौहीन। थोड़ा लाट साहब का पास देखो। पास नहीं है हमारे पास। तो एक काम करो, पास दिलवा दो इनको। अरे साहब रुको। पापा बाहर से आ रहे हो, ये सैनिटाइजर ले लो। ये सैनिटाइजर हटाओ यार, आयोडेक झंडू बाम कुछ दो। चुल्लों ने मार के सुझा दिए। तो बाम लगाने वाले काम क्यों करते हो? मना किया था तुम्हें बाहर जाने को। अरे अंदर तुम शांति से नहीं बैठने देती, बाहर ठुल्ले पकड़ लेते हैं। जाए तो जाए क्या, करे तो करे क्या? अरे पापा मम्मी दादा ही सब इधर आइए, देखिए कौन लोग जा रहे हैं। मोहन, आसिफ, मुन्ना, गुड़िया, मोनिका, रेहाना, इस भीड़ के कई नाम थे। इस भीड़ में डर, भूख, चिंता, मजबूरी सबको देखा जा सकता है। समय का चक्कर घूमता गया, रमन लापरवाह रहा, परंतु अब रमन की लापरवाही अपने लक्षण दिखाने लगी थी। रमन, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है, तुम डॉक्टर के पास चले जाओ और टेस्ट करा के आओ कोरोना। अरे कुछ नहीं, नॉर्मल फ्लू हुआ है, पैरासीटामोल खा लूंगा, हो जाएगा 2 दिन में ठीक। तुम चिंता मत करो। अरे पापा आपको कोविड हुआ है, आप अब नहीं बचोगे। मेरे दोस्त के पापा को भी ऐसे ही हुआ था। छोट कुछ भी बोलता है। अमन बेटा दवाई ले लो, मैंने कोरोना ला के रखी है, बेटा ले लो, 100% ठीक हो जाओगे। अरे पापा आप समझ क्यों नहीं पाते? किंतु बेटा दवाई दो, पापा की दवाई। अरे हटाओ यार, तुम लोग कहते हो जाओ सरकारी अस्पताल जाओ, प्राइवेट में जाओ, वहाँ बेड नहीं मिल रहे।
गए तो भी क्वारंटाइन में रख देंगे, मरवर गया तो अस्थियां तक कहीं नहीं मिलेगी तुम्हें। कहाँ जाओगे तुम लोग? बेटा बात मान लो, चले जाओ डॉक्टर के पास, चले जाओ सर। अरे कोई नहीं, मैं नहीं जा रहा, नॉर्मल गोली से ठीक हो जाए, आपकी तो उम्र हो गई अभी। इसी तरह लापरवाही में कुछ दिन और बीते। अब रमन के पिता और पत्नी प्रभा की तबीयत बिगड़ने लगी। जोगेश्वर जी की हालत काफी नाजुक थी। क्या हुआ पापा? खांसी भी हो रही है और सांस भी नहीं आ रही है। लग रहा है मुझे कोरोना हो गया है। क्या हुआ पापा? पापा सांस नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही है। अरे एम्बुलेंस बुलाओ कोई। पिताजी, बाबूजी। सिचुएशन बहुत खराब है, लंग्स 80% इन्फेक्टेड है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने कोरोना की वैक्सीन भी नहीं ली थी। आप बहुत लेट हो गए, अब हमें नहीं बचा सकते। शायद बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों की बहुत कोशिशों के बाद प्रभा तो रिकवर हो गई, परंतु जोगेश्वर ना बच सके। रमन की लापरवाही की सजा उनके पिता को मिली। रमन बहुत उदास था, वह अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता। मेरी एक लापरवाही, कितनी बार लोगों ने समझाया। बाबूजी 100 बार मुझे कह रहे थे, बेटा मुझे अस्पताल ले चल, वैक्सीन लगवा दे, पर क्या हुआ? मर गए। अभी इस का प्रायश्चित मैं कैसे करूंगा? शायद अभी मुझे मेरे जैसे मूर्ख लोग जो है उनको समझा कि उनके घर में से किसी को कोरोना से बचाना, यही मेरा प्रायश्चित होगा। शर्मा जी के पिताजी को भी कोरोना हुआ है, उनसे बात कर लो। अच्छा, हेलो शर्मा जी, मैंने सुना आपके पिताजी को भी कोरोना हो रखा है। मैंने जो गलती की वो आप मत कीजिए, हमारे घर में उसकी वजह से पहले ही देहांत हो चुका है। चलो आपके पापा को हम हॉस्पिटल ले चलते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप इन्हें टाइम से ले आए हैं। कोविड की वैक्सीन भी इनको लगी हुई है, ये बच जाएंगे, कुछ नहीं होगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, शुक्रिया रमन भाई। अगर आज आप लोग नहीं होते और आप इस समय की मदद ना की होती तो जाने से ऐसे क्या होगा। और शर्मा जी की कहानी सिर्फ इन्हीं की नहीं, हम सब की है। हम में ही कई शर्मा जी हैं जिन्होंने सही समय पर अपने और अपने परिवार को बचा लिया, और हम में से कुछ रमन भी हैं जिन्होंने अपनों को खो भी दिया। परंतु कुछ और भी हैं जिन्हें हम अक्सर भूल जाया करते हैं, वो जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हमारी जान बचाई।